السلام علیکم، میں ہوں اسما بیگ۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کی درخواست پر جاری اسٹے آرڈر ختم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام متعلقہ اداروں کو چینی انکوائری رپورٹ پر کارروائی کی اجازت دے دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے مختصر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے حکومتی اراکین کو چینی کیس پر غیر ضروری بیان بازی سے روک دیا۔ چینی انکوائری رپورٹ پر عمل درآمد کے لیے معاون خصوصی شہزاد اکبر کے اختیارات پر سوال۔ فیصلے میں کہا شہزاد اکبر کو دیے اختیارات سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطابقت نہیں رکھتے۔ شوگر ملز کا معاملہ نیب کو بھیجنے کا حکومت کو اختیار ہے۔ وزیر اعظم کا ایک بار پھر چینی بحران کے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن کا اعلان۔ کور کمیٹی اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ملک میں بحران پیدا کرنے والے مافیاز کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ ہر قسم کے مافیا کا مقابلہ کرنا ہے اور انہیں بے نقاب کرنا ہے۔ قوم سے کچھ نہیں چھپایا جائے گا۔ بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان تک ہمارے پاس چیلنجز ہیں اور ہمیں سب مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے جواب میں ہمیں کیا ملا؟ اس کے جواب میں وزیر اعظم نے سیاست کی۔ جو ہمارا کرپشن کے خلاف مہم شروع ہو جاتے ہیں وہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے نہیں، کیسز کو استعمال کر کے کسی کو پریشر ڈالنے کے لیے۔ وزیر اعظم بحران کے وقت بھی سیاست کر رہے ہیں۔ عوام ان حالات میں باہر نکلے تو انہیں کوئی نہیں سنبھال سکے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس۔ کہا جسٹس فائز عیسیٰ کی جاسوسی کا معاملہ سامنے آیا، یہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ ججز کی جاسوسی کے معاملے پر GIT بنانی چاہیے۔ سپریم کورٹ سے اپیل ہے بدنیتی سے بنائے گئے کیسز کا مسئلہ اٹھائیں۔ مزید بولے شہباز شریف کے صحتیاب ہوتے ہی آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے۔ بجٹ میں کورونا اور ٹڈیوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ تو ہر چیز کے اوپر سیاست کرنی ہے۔ سیاست کرے خدمت کر کے۔ آپ 5.5 کروڑ کا صحت کی بجٹ کا جواب نہیں دے سکتے۔ 104 ارب تھر اور وہاں پہ پانی کے اوپر خرچ ہوا لیکن پیاس سے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے اموات ہو رہی ہے، اس کا آپ جواب نہیں دے سکے۔ اگر کوئی اور ان کے لیے کچھ کر رہا ہے اور اس وبا کا مقابلہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، غربت کے خاتمے کی کوششیں ہو رہی ہے، اس میں آپ رکاوٹ نہ بنے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا بلاول بھٹو کو جوابی وار۔ نیوز کانفرنس میں بولے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت لوگوں کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ رہی۔ بلاول جس حلقے سے منتخب ہوئے وہ ابھی بھی پسماندہ ہے۔ سندھ کے کوٹے میں 10% اضافہ کیا گیا۔ ایشوز حل کرنے کی بات کی جاتی ہے تو بلاول بھٹو سیاست کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا لاڑکانہ کا دورہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے لیے تھا۔ 8 سال میں 5.5 کھرب سندھ پہ صحت پر لگنا تھے، وہ کہاں گئے؟ جب حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا تو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کیوں بنے؟ سربراہ BNP سردار اختر مینگل کی اسلام آباد میں اپوزیشن کی APC کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا حکومت میں جانا اب میرے بس میں نہیں، حکومت میں واپس جانے کا فیصلہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔ اختر مینگل نے فائنانس بل کی حمایت سے بھی دو ٹوک انکار کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان بولے 18ویں ترمیم میں تبدیلی، NFC ایوارڈ میں کمی قبول نہیں۔ حکومت اپنے ناراض اتحادی کو ہر صورت منانے کے لیے کوشاں۔ حکومتی وفد آج BNP کے سربراہ سردار اختر مینگل سے ملاقات کرے گا۔ حکومتی وفد کی سربراہی وزیر دفاع پرویز خٹک کریں گے۔ ملاقات میں حکومتی اور BNP مینگل کے ساتھ طے پانے والے معاہدے پر گفتگو ہوگی۔ گزشتہ روز پرویز خٹک اور سردار اختر مینگل کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا تھا۔
मुल्क भर में कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा, मजीद 153 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 3,382 हो गई। 24 घंटों में 6,604 नए केसेस, मजमूई तादाद 1,71,666 हो गई। सिंध में 65,163, पंजाब 64,216, खैबर पख्तूनख्वा 20,790, बलूचिस्तान 9,162 मरीज जेर इलाज। अब तक 63,504 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। सिंध में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 35 मरीज जाँ बहक, 2,190 केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है सूबे में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 1,048 हो गई। इस वक्त सूबे भर में 32,193 कोरोना के मरीज ज़ेरे इलाज, 700 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 116 वेंटिलेटर्स पर हैं। आज 1387 मरीज सेहतियाब होकर घरों को चले गए। अवाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। मुल्क भर में कोरोना इमरजेंसी बरकरार, हसास इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन। शहर शहर आज और कल कारोबारी मराकज बंद। कराची के तमाम 6 अजला में हॉटस्पॉट इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। हैदराबाद के 91 हॉटस्पॉट इलाके भी सील। इस्लामाबाद के 6 सेक्टर्स, रावलपिंडी के 22 इलाकों के हॉटस्पॉट मुकम्मल सील। हुकूमत ने तमाम एयरलाइंस को बैरून मुल्क से मुसाफिरों को पाकिस्तान लाने की इजाज़त दे दी। सिविल एविएशन के मुताबिक PIA समेत तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस मुसाफिर पाकिस्तान ला और ले जा सकेंगी। NCOC के फैसले के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों का आज से एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी ट्वीट में कहा, फ़िज़ाई ऑपरेशन बैरून मुल्क काम करने वालों के लिए मुआविन साबित होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वापसी पर खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं करप्शन के टिड्डी दल पाकिस्तान की बुनियादों को खा चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन के बुतों को पाश पाश किया। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, हमजा शहबाज को शायद बजट पढ़ने और सुनने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब का मौजूदा बजट नए टैक्स आयद ना करने वाला अपनी नौयत का पहला बजट है। उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट पब्लिक करने का मामला सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 26 जून को केस की समाअत करेगा। सिंध हुकूमत ने अपील में वफाकी वजीर अली जैदी को फरीक बनाया है। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर अली जैदी की दरख्वास्त पर उज़ैर बलोच से मुतालिक JIT रिपोर्ट्स पब्लिक करने का हुक्म दिया था। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 400 अरब रुपए तक होने का इम्कान। 5,000 नई आसामियों का ऐलान भी मुतवक्के। खसारा 60 अरब से जायद होगा। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 87,58,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 4,62,000 से जायद। अमरीका दुनिया भर में कोरोना का सबसे बड़ा मरकज बन गया। 22,97,000 अफराद बीमार, 1,21,000 से जायद अफराद लुकमा अजल बन गए। ब्राज़ील में 10 लाख अफराद वबा की लपेट में आ चुके। रूस 5 लाख से जायद मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। अब तक 7,800 से जायद हलाकतें। भारत में मजीद 14,700 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कल सूरज ग्रहण लगेगा। कल सुबह 11:25 पर दिन में रात हो जाएगी। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण 9:45 पर शुरू होगा। दोपहर 1:10 पर ख़त्म होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, बलूचिस्तान और KPK में 90%, जबकि कराची में 100% सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक देखा जा सकेगा।
इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने हुकूमती अराकीन को चीनी केस पर गैर जरूरी बयानबाजी से रोक दिया। चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट पर अमल दरामद के लिए मुआवन खसूसी शहजाद अकबर के इख्तियारात पर सवाल। फैसले में कहा, शहजाद अकबर को दिए इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताबिकत नहीं रखते। शुगर मिल्स का मामला नैब को भेजने का हुकूमत को इख्तियार है। शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्त पर जारी स्टे ऑर्डर खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम मुतल्लिका इदारों को चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट पर कार्रवाई की इजाजत दे दी। एक और अहम खबर देंगे आपको। मुल्क में बहरान पैदा करने वाले माफियाज को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। हर किस्म के माफिया का मुकाबला करना है और उन्हें बेनकाब करना है। वजीर आजम इमरान खान की कोर कमेटी इजलास में गुफ्तगू। उन्होंने मजीद कहा कि कौम से कुछ नहीं छुपाया जाएगा। दूसरी तरफ वजीर आजम की ज़ेर सदारत हुकूमती कानूनी टीम का अहम इजलास हुआ। हेल्थ सेक्टर में कानून साजी के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर आजम का हेल्थ सेक्टर में इस्लाती पैकेज लाने का भी ऐलान। अहम खबर दे रहे हैं आपको, मुल्क में बहरान पैदा करने वाले माफियाज को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अहम खबर, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के कोरोना इकदाम को गैर संजीदा करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि विफाक ने कोरोना पर सूबाई हुकूमत की कोई मदद नहीं की है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के कोरोना के खिलाफ इकदाम को गैर संजीदा करार दे दिया। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि विफाक ने कोरोना पर सूबाई हुकूमत की कोई मदद नहीं की है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से यह भी कहा गया कि बजट ऐसे पेश किया गया जैसे कोरोना कोई मसला ही नहीं है। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि हुकूमत को बजट में हेल्थ और कोरोना पैकेज देना चाहिए था। बिलावल भुट्टो की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि जब से वबा आई है हर मुतनाज़ा मसला उठाया जा रहा है। बलूचिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक हमारे पास चैलेंजेस है और हमें सब मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन उसके जवाब में हमें क्या मिला? उसका जवाब में वज़ीर आज़म ने सियासत की। करप्शन मौजूद है पाकिस्तान में, लेकिन जो हमारा करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू हो जाते हैं वो करप्शन को ख़त्म करने के लिए नहीं, करप्शन का मुकाबला करने के लिए नहीं, उनका एक दूसरा मकसद होता है केसेस को इस्तेमाल करके किसी को प्रेशर डालने के लिए। जब तक वो जारी रहेगा तब तक आप करप्शन का ख़त्मा नहीं कर सकते हो। और मैं अपील करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि ये इस इशू को उठाए। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है इसी जस्टिस फैज़ ईसा केस के मुतालिक कि अगर जज के ऊपर रेफरेंस बन सकता है इतना बात पे, तो फिर जो फैज़ ईसा साहब ने इंफॉर्मेशन लेकर आया है दूसरों के हवाले से, वज़ीरों का शाहिद नाम भी उसमें हो, उस पर भी JIT बने। मुतालबा करते हैं कि पूरा NFC अवार्ड दिया जाए। इसलिए अगर पूरा NFC अवार्ड नहीं दिया जाएगा तो फिर PFC में क्या दिया जाएगा? PFC तो आपका NFC शेयर से बनेगा ना। और मैं चाहूँगा, मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि हर डिस्ट्रिक्ट को, हर डिवीज़न को उनका हक मिले, लेकिन अगर आपको वो रिसोर्सेस ही नहीं दिए जाएंगे तो नाइंसाफ़ी होगा। वफाकी वज़ीर मुवासलात मुराद सईद की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिस हल्के से मुंतखब हुए वो अब भी पसमानदा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।